اسلامی بھائی ہیں، انشاءاللہ ان سے ان کا تعارف بھی لیں گے، مگر وقت ہوا ہے آپ کو دکھاتے ہیں جو کل پروگرام ہوا تھا دو ٹیموں کے درمیان، کون سی ٹیم آگے بڑھ گئی کون سی پیچھے رہ گئی، آئیے کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اللہ کی رحمت سے سیزن 17 ہے اور آج نواں مقابلہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق عظیم ہے کیونکہ آپ کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تھا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ شاخ قامت شہ میں زلفو چشمو رخسارو لب ہے۔ سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاخ؟ سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاخ، جواب درست دے دیا ہے۔ اگر قصور والوں نے 4 صحیح جواب دے دیے تو یہ مقابلہ جیت جائیں گے، اور اگر 3 غلطیاں کر گئے تو فیصلہ آباد والے جیت سکتے ہیں۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، صحیح۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا بازار بریلی شریف میں نہیں ہے، غلط۔ موجودہ ماہ اسلامی سال کا 5واں مہینہ ہے، حضرت امام احمد رضا خان ہوئے، غلط۔ حضرت حمزہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہے، صحیح۔ غلطی کی ہے مگر ایک غلطی کی ہے، قصور والے آج کا مقابلہ جیت گئے ہیں۔ اذکر اللہ، کبھی مقابلہ ایک طرف کبھی مقابلہ دوسری طرف، اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ اس بار بڑے شہروں کی ٹیمیں مشکل میں ہیں اور ہم نے دیکھا ہے اب تک ذہنی آزمائش میں چھوٹے شہروں کی ٹیمیں آگے بڑھ رہی ہیں، البتہ فیصلہ آباد والوں کو دل چھوٹا نہیں کرنا، ابھی ایک موقع باقی ہے۔ کل قصور کے اسلامی بھائی ناظرین 1 نمبر کے فرق سے آگے بڑھ گئے، آپ آج دیکھنا ہے ملتان یا مری کون سی ٹیم آگے جاتی ہے۔ ناظرین آئیے وقت ہوا ہے ایک سوال آپ سے پروگرام کے شروع میں ہم کرتے ہیں، آج کا وہ سوال جس کا جواب آپ نے میسج کے ذریعے دینا ہے۔ سب سے پہلے اذان کی تجویز کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی؟ سب سے پہلے اذان کی تجویز کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی؟ ایک اور سوال جو ہم آپ سے ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن کے ذریعے کرتے ہیں، آج ناظرین میں ایک اور بات بتا دوں کہ ذہنی آزمائش کی کوئز ایپلیکیشن ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں اور کوشش کریں کہ روزانہ جواب دیں، کیوں؟ انشاءاللہ جلد آپ اس بارے میں کوئی اچھی خبر سنیں گے، تو پلیز اگر ابھی تک ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، روزانہ جواب دیں، بے شک انعام نکلتا نہیں نکلتا آپ روزانہ جواب ضرور دیں۔ اب آج کا سوال کیا ہے؟ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کون سا پرندہ داخل فرمایا؟ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے، مور، ہدہد، طوطا یا کبوتر؟ اس کا جواب صحیح دیجئے اور اپنی آئی ڈی سیو کیجئے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کا جواب درست ہے اور کن 5 لوگوں کو انعام پہنچ رہا ہے۔ میری دائیں طرف ملتان کے اسلامی بھائی ہیں، بتائیے اپنا نام اور کیا مصروفیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد افضل قادری ہے، اور میرا تعلق جنوبی پنجاب کے شہر دنیا پور سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ دنیا پور میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں۔ دنیا پور سے ملتان پہنچے اور وہاں سے سلیکٹ ہو گئے۔ اگلے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مستنصر اسماعیل ہے، میرے والد محترم کا نام ملک خادم حسین ہے، میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ملتان کے درجہ سادسہ یعنی 6th ایئر کا طالب علم ہوں، اور اس کے ساتھ BS بھی کر رہا ہوں، اور بیسیکلی میرا تعلق شہر سناواں تحصیل کوٹ ادوں سے ہے۔ ماشاءاللہ جی، اگلے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد انیس اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام ماسٹر محمد طارق ہے، بیسیکلی میرا تعلق ملتان شریف سے ہے، اور میں عالم اجتماع گاہ صحرائے مدینہ ملتان شریف میں واقع جامعۃ المدینہ کے درجہ خامسہ یعنی 5th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، ملتان کی ٹیم ہمارے سامنے موجود ہے، مدینہ الاولیاء ملتان سے آئے ہیں، کیسے سلیکٹ ہوئے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج الحمدللہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں آڈیشن کا سلسلہ ہوگا، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آڈیشن کی طرف۔ جس کے سینے میں سجا سینہ وہی فل نور ہے، علم دی تو نور ہے۔
जंग अहद में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी के लिए फिदा का अबी व उम्मी के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए? हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। खबर ही नहीं जो रमज़े खुली अजल की निहा तुम्हारे लिए। न रूह अमीन अर्श बरी न लोह मुबे कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रमज़े खुली अज़ल की निहा। बसा ये कशा मवाक़िब शाह ये नामो निशा तुम्हारे लिए। सना का निशां व नूर फिशां के महर फशां बेआए हमा शां बसा का शां मवाक़िब शां के नामो निशां तुम्हारे लिए। कौन सी 4 चीजों को हदीस पाक में दुनिया और आखिरत की भलाई फरमाया गया है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसे 4 चीजें अता की गई उसे दुनिया व आखिरत की भलाई अता की गई। शुक्र करने वाले दिल, अल्लाह पाक का जिक्र करने वाली जुबान, मुसीबतों पर सब्र करने वाला बदन, उसके माल और इज्जत में खयानत ना करने वाली बीवी। आपका जवाब दुरुस्त है। इल्म दीन तो नूर है, हाँ बिल यकीन ये नूर है, जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। इल्म दीन तो नूर है, हाँ बिल यकीन ये नूर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुल्तान की टीम कैसे सेलेक्ट हुई इसके मनाजिर देखे। ये जो इतना मुश्किल शेर पढ़ रहे थे, ये कौन से भाई थे? आप थे? ये जरा शेर सुना दे, मैं मजा आ गया। मैं तो एक मिसरा सुन के मजा, याद है वो शेर? नहीं याद है, अब याद नहीं है। कमाल है, एडिशन में याद था और तो हो सकता है उससे मुश्किल शेर आ जाए। चले जनाब, बहरहाल अब बारी मरी वालों की है और मरी वालों से हम सवाल करेंगे कि अब बताइए क्या नाम है और क्या करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल सुब्हान अत्तारी, वालिद मोहतरम का नाम साजिद महमूद। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान गौसे आज़म कंपनी बाग मरी में 2nd ईयर का तालिब इल्म हूँ और मेरा बेसिकली ताल्लुक मरी की एक तहसील कोटली सतिया से। माशाल्लाह जी। अगले इस्लाम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मेरा नाम जुल्करनैन अब्बासी, वालिद साहब का नाम मोहम्मद इमरान अब्बासी। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान गौसे आज़म कंपनी बाग मरी में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा ताल्लुक तहसील ज़ीरा मरी से ही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सफुल्लाह तारी, वालिद साहब का नाम चौधरी मोहम्मद सफ़ीर है। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान गौसे आज़म में 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ और मेरा बेसिकली ताल्लुक ज़िला मरी से है। चले जनाब, मरी के स्टूडेंट हमारे पास पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे हैं, कुछ झलकियां इनके ऑडिशन की देखते हैं। आ गया है फिर से ज़हनी आज़माइश नाज़रीन, याद में हमको मदीने की रुलाने के लिए। इल्म की तो नूर है, हाँ बिल यकीन ये नूर है। इस वक्त हम मरी में हैं, आइए आपको लिए चलते हैं मरी के ऑडिशन की तरफ। इल्म की तो नूर है, हाँ बिल यकीन ये नूर है, जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। इल्म दी तो नूर है, हाँ बिल यकीन ये नूर है। हद किसे कहते हैं? हद एक किस्म की सज़ा है जिसकी मिक़दार शरीयत की जानिब से मुकर्रर है और इसमें कमी पेशी नहीं की जा सकती और इससे मकसूद लोगों को उस काम से बाज रखना है जिसकी ये सज़ा है। अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। अंबर ज़मी अबीर हुआ मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। बचा लो आकर शफीअ महशर तुम्हारा बंदा अजाब में है। खुदाए कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर तुम्हारा बंदा अजाब में है। वादाए चश्म है बख्शाएंगे गोया होकर। गोश शाह कहते हैं फरियाद रसी को हम हैं, वादा चश्मा बख्शाएंगे गोया होकर। इल्म की तो नूर है, हाँ बिल यकीन ये नूर है, जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। आज वैसे ऐसे लग रहा है कि मरी वालों ने अपनी जूनियर टीम भेजी है। बहरहाल अब उम्मीद है कि तैयारी अच्छी करके आए होंगे। ये तो वक्त बताएगा कि कौन सी टीम आगे जाती है, कैसी तैयारी करके आए हैं। कल हमने जो सवाल किया था नाजरीन, अब उसके जवाब की बारी है। जवाब सुनिए और फिर कुरानदाजी इंशाअल्लाह। सवाल ये था कि ताबूत सकीना में किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंगूठी मुबारक थी। तो दुरुस्त जवाब है हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। मोहम्मद बिलाल अत्तारी मंडी बहाउद्दीन, मोहम्मद जमील रज़ा मानसेरा बिनते मुख्तार खानपुर, अली सियालकोट बिनते अय्याज अत्तारिया संबड़ियाल, जाहिद अली अत्तारी बूरेवाला बिनते गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारिया गुजरावाला, अबू उसैद नारंग, मोहम्मद मुश्ताक अत्तारी आरिफ वाला, जोजा मुजम्मिल अत्तारी जहानिया बिनते मुबारक अत्तारिया चीचा वतनी, मोहम्मद नासिर बिन मोहम्मद अली कराची। आज तोहफा जा रहा है मानसेरा मोहम्मद जमील रज़ा, इनका नाम निकला है, तो इंशाल्लाह तोहफा मानसेरा पहुंचेगा। चले नाजरीन, आइए वक्त हुआ है। आज बताते हैं आपको आज का मुकाबला, 10वां मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है।
इल्म नूर है इश्क के बोल 1500वां जश्न विलादत फिक़ह हनफी और उसके दलाइल तलाश कीजिए कुरानी मालूमात सफर है मगर अकेले। आइए चलते हैं पहले राउंड की तरफ जिसका नाम है इल्म नूर है। इल्म नूर है सेगमेंट में पहला सवाल करेंगे मुल्तान वालों से। कुरान पाक को शिफा फरमाया गया, इससे क्या मुराद है? सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि कुरान पाक से शिफा तलब की जाए, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला इसकी बरकत से बहुत सारी तकलीफ़ों मर्ज़ वगैरह को दूर फरमा देता है और इंसान को राहत मिलती है। और इस कौल की यानी सहाबी रसूल की तफसीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से होती है कि हदीस पाक में है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान से शिफा तलब नहीं करता अल्लाह पाक उसको शिफा नहीं देता। हदीस पाक में आता है जो कुरान मजीद के जरिए शिफा हासिल नहीं करता अल्लाह पाक उसको शिफा नहीं देता। कुरान पाक शिफा है, पढ़िए कुरान और बरकतें हासिल कीजिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खौफे खुदा रखने वाले लोगों को कुरान मजीद में मौजूद वईदात सुनकर उनकी क्या हालत हुआ करती थी? हज़रत सैयदना इमाम बिदावी रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि खौफ खुदा रखने वाले लोग कुरान मजीद में मौजूद वईदात सुनकर मुत्तरिब व बेचैन हो जाते थे। जी जनाब, खौफे खुदा रखने वाले लोग कुरान अजीम में बयान करदा वईदों यानी पिछली कौमों के अजाबों और गुनाहों के अजाबों का जब जिक्र सुनते हैं, वईदों का जिक्र सुनते हैं तो मुस्तरिब और बेचैन हो जाते हैं। अल्लाह मुझे और आपको ऐसा कुरान पाक का फहम नसीब फरमाए कि जब रहमत इलाही की बात सुने तो दिल झूमने लग जाए, जब अल्लाह की कुदरत की बात सुने तो आंखों से आंसू जारी हो जाएं, जब जन्नत का तस्करा हो तो जन्नत की तलब बढ़ जाए और जब अज़ाबात का जिक्र सुने तो दिल बेचैन और मुस्तरिब हो जाए। अल्लाह कुरान पाक के नूर से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आसमान वालों के लिए मसाजिद की कितनी अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मसाजिद ज़मीन में अल्लाह पाक के घर हैं और ये आसमान वालों के लिए ऐसे चमकते हैं जैसे ज़मीन वालों के लिए आसमान के सितारे हैं। क्या सैयदना इब्न अब्बास का मुबारक कौल है। इमेजिन, ट्राई टू इमेजिन, जमीन पे रहकर जब आसमान पर देखते हैं तारे कैसे चमक रहे होते हैं। फरमाया ये आसमान वालों के लिए ऐसे चमकते हैं, यानी अल्लाह का घर मस्जिद हो, जब आसमान वाले देखते हैं तो वो इसी तरह चमकते हुए उनको नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें मस्जिदों से मोहब्बत नसीब फरमाए, मस्जिदें बनाने आबाद करने वालों में हमें शामिल फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सब्र नामी शैतान किस काम पर मुकर्रर है? मरी वालों से सवाल है। सबर नामी शैतान मसाइब की तरफ ले जाता है जो हलाकत और बर्बादी, गिरबान जा करने, रुखसार पीटने और ज़माना जाहिलियत के काम करने का हुक्म देता है। जी जनाब, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, गिरबान चाक करना, अपने गालों पर रुखसार पर पीटना, चाटे मारना, नोहा, जो जिस तरह लोग आजकल ज़माना जाहिलियत का अंदाज इख्तियार करते हैं, सबर जो नामी शैतान है उसका ये काम है। अल्लाह करे कभी कोई तकलीफ अगर आ भी जाए तो अल्लाह करीम हमें सब्र की तौफीक नसीब फरमाए, हम सबको मुसीबतों और आफतों से महफूज फरमाए। लेकिन अगर मुश्किल आए तो सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, सब्र नामी शैतान वाले काम की तरफ नहीं जाना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुरूफ़े मुक़त्तआत के मुतालिक इमाम शाबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना इमाम शाबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह हर किताब का कोई राज होता है, इसी तरह कुरान पाक का एक राज है और वो हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं। लिहाजा तुम इनकी जुस्तजू छोड़ दो और इनके अलावा के मुतालिक सवाल करो। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं हर किताब का कोई राज होता है और कुरान पाक का राज ये जो सूरतों के इब्तिदा में हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं, फरमाया इनकी जुस्तजू छोड़ दो, इसके अलावा कोई और सवाल करो। सुभान अल्लाह। तो ये भी हमें पता चला कि ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
मुत्तकी किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना इमाम वाहिदी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मुत्तकी, लफ्ज़ मुत्तकीन के तहत इरशाद फरमाते हैं कि मुत्तकी कहते हैं दो चीज़ों के दरमियान रुकावट और अड़ को। या था कहा जाता है इत्तिका बितुरसी, यानी उसने डाल से अपना बचाव किया, यानी डाल को अपने और उसके दरमियान रुकावट और अड़ बना लिया। बस मुत्तकी वो होता है जो इताअत और इबादत के सबब खुद को अज़ाब और सज़ा से बचाए और अहकामात शरिया पर अमल करके ममनुआत शरिया से इज्तिनाब को अपने उस अज़ाब और सज़ा के दरमियान रुकावट और अड़ बना ले जिनका कुफ़ार से वादा किया गया है। जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है। 3-3 सवाल, सारे सही जवाब। अब बारी है नाजरीन, हमने कुछ ऑप्शंस इन्हें दिखाने हैं और वो ऑप्शंस मूव करते रहेंगे। स्टॉप कहेंगे तो वो ऑप्शन रुक जाएगा और फिर उसी टॉपिक से मुताल्लिक सवाल होगा। मुल्तान वालों को ऑप्शन दिखाया जाए। स्टॉप। जनाब औलिया किराम से मुताल्लिक सवाल होगा। अब देखना है सवाल क्या है। वैसे भी मदीनतुल औलिया से आए हैं तो मदीनतुल औलिया वालों से औलिया से मुताल्लिक सवाल बताइए जनाब। सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की कुन्नियत क्या है? आप चाहें तो यहाँ मौजूद किसी इस्लामी भाई से मदद ले सकते हैं, चाहें तो ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। ऑप्शन लेंगे जनाब, बताइए। अबू अब्दुल्ला, अबू सालिम या अबू सईद? आसान सवाल नहीं है, गौर करके जवाब दीजिएगा, अभी 10 सेकंड हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू सईद। अबू अब्दुल्ला मौजूद था और नॉर्मली बड़े बुजुर्गों की ये कुन्नियत है। अबू सईद कहीं पढ़ा था, वैसे ही कह दिया पढ़ा है। सैयदुना हसन बसरी की कुन्नियत इन्होंने कहा अबू सईद। बाज़ औक़ात पढ़ा हुआ भी गलत हो जाता है, लेकिन इस बार पढ़ा हुआ ठीक हो गया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मरी वालों की बारी है जनाब। ऑप्शन दिखाएं, टॉपिक्स दिखाएं। स्टॉप। औलिया किराम। चले जनाब, आज दूसरा सवाल भी औलिया किराम से मुताल्लिक है। आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मजार शरीफ कहाँ है? चले जनाब, मरी वालों के लिए मुश्किल है, बाकी बहुत शहरों वालों के लिए आसान है। जी ऑप्शन दे दे जनाब। ऑप्शन लेंगे या मदद लेंगे? ऑप्शन। हाँ, आपने गलती कर दी। आप अगर मदद लेते तो जवाब फौरन मिल जाता। चले जनाब, ऑप्शन दे दें। कराची, भावलपुर या बुखारा? आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मजार, देखिए बुखारी नाम के साथ है। जल्दी करें, टाइम खत्म हो रहा है। आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाहि तआला का मजार कराची में है। आपसे मिस्टेक हो गई है। चलिए जनाब, बारी है मुल्तान वालों के लिए। फिर टॉपिक्स दिखाएं। स्टॉप। कुरान पाक। कुरान की किस सूरत का नाम धात के नाम पर है? चाहे तो मदद ले लें, चाहे तो ऑप्शन ले लें। ऑप्शन 3 ऑप्शन हैं। सूरह दुखान, सूरह हदीद, सूरह आराफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल हदीद। सूरतुल हदीद। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। फिर बारी मरी वालों की है। ऑप्शन दिखाए जाएं, टॉपिक्स दिखाए जाएं। स्टॉप। जनरल नॉलेज। चले जनाब, मरी वाले जनरल नॉलेज पर सवाल का जवाब देंगे। जिस्म का वो कौन सा है हिस्सा है जो दुनिया में आकर मिलता है, यानी पहले से हमारे पास नहीं होता, बाद में मिलता है? चले जनाब, ऑप्शन चाहिए या यहाँ पर मौजूद मदद लेंगे? चले जनाब, ये तो गड़बड़ हो गई। डायरेक्ट ऑप्शन के बगैर मदद, जिस पे मदद देनी थी उस पे नहीं दी। भाई कौन मदद करेगा? पहले हाथ उठाएं जो मदद कर सकता है। पैदा होते वक्त वो हिस्सा होता नहीं, बाद में इंसान को मिलता है। इनकी मदद मान लेंगे भाई आप? चले भाई मान लेंगे। इनका तो कुछ नहीं जाएगा, उनका बेचारों का नहीं, वैसे भी चले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक अहमद है। जिस्म का जो हिस्सा यहाँ दुनिया में आकर मिलता है वो दांत है। दांत है। हाँ भाई, क्या कहते हैं? जवाब सही है। सही। बच्चा पैदा होता है, दांत तो नहीं होते, दांत तो बाद में आते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, मदद अच्छी हो गई है, 2 नंबर मिल गए हैं।
अब स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से आज तो आतिफ भाई कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ज़हनी आजमाइश इब्तिदा है जी। शुरू के दौर में भी इसी तरह छोटे छोटे जिस दौर में आतिफ भाई आए थे मेरा ख्याल है उनको अपना दौर ही है, लेकिन ये इस्लामी भाई की उम्रें पूरी हैं बता रहे हैं, लेकिन दिखते में छोटे हैं, लेकिन अंदर से बंदा बाज़ औक़ात बड़ा होता है। चले देखते हैं तो क्या उनकी क्वालिटी आती है सामने। जी सवाल ये है कि कितने महीनों के नाम कुरान पाक में आए हैं? कितने महीनों के नाम कुरान पाक में आए हैं? कितने महीनों के नाम कुरान पाक में आए? चलिए आसिफ भाई से भी इंशाल्लाह जवाब लेंगे, पहले इधर से लेते हैं, दुरुस्त होता है तो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन लाला तारी है। जी एक महीना, कौन सा महीना? रमजान शरीफ। रमजान शरीफ। इनका जवाब दुरुस्त है और इंशाल्लाह इन्हें अल मदीनतुल इल्मिया की बड़ी प्यारी किताब है वेलकम टू इस्लाम, इस्लाम के बुनियादी अकीदे, ये किताब ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल बुक है। अगर कोई शख्स नया मुसलमान होता है उसके लिए भी बड़ी अच्छी किताब है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सबको पढ़नी चाहिए। बाज़ औक़ात जो हमारे बच्चे होते हैं उनके पास भी इस्लाम की बुनियादी मालूमात नहीं होती, लोग कन्फ्यूजन भी फैलाते हैं, तो ये किताब पे बहुत खूबसूरत सवाल जवाब के जरिए समझाया गया है। किताब जरूर हासिल करें माशाल्लाह। इस्लाम के बुनियादी अकायद। रमज़ान 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 साक़ी में तेरे सदक़े शोरे महीनों सुनकर तुझ तक में दवा आया सांसी में तेरे सदक़े सदक़े सांसी में तेरे सदक़े मैं बेरमज़ान आया। अगला सवाल है उम्रे से मुतालिक अमीर अहले सुन्नत की किताब रफ़ीकुल हरमैन, इसके अलावा दूसरी कौन सी किताब है? रफ़ीकुल हरमैन के अलावा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रिहान तारी कश्मीर से। उम्रे के मुतालिक अमीर सुन्नत की किताब रफ़ीकुल मोतमरीन है। जी रफ़ीकुल मोतमरीन ये किताब हर घर में होनी चाहिए, खासतौर पे जो उम्रे पे जाते हैं उन्हें तोहफे में भी दिया करें। और रफ़ीकुल हरमैन एक्चुअली उम्रे की किताब नहीं है, वो हज और उम्रा उसमें मौजूद है, लेकिन स्पेशली उम्रा करने वालों के लिए रफ़ीकुल मोतमरीन है। दोनों किताबें बड़ी कमाल की हैं। नॉर्मली लोग हाजियों से मिलते हैं तो कई किस्म के तोहफे देते हैं, ये वो तोहफे हैं जो दें तो इंशाल्लाह उन किताब भी साथ जाएगी, आपको भी सवाब मिलेगा और उनको भी मदद मिलती रहेगी इंशाल्लाह। मामा शरीफ इनको तोहफे में दे रहे हैं और बांधने की नियत भी बांध भी ले तो क्या बात है, सुभान अल्लाह। चलिए जरा आप कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर सदीक अतारी है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद शौकत अली अतारी है। मैं फैजान इस्लामिक स्कूल सिस्टम में पढ़ता हूँ। हम सब दोस्तों का ख्वाब है कि हम फैजान इस्लामिक स्कूल से ज़हनी आजमाइश में जाएं। माशाअल्लाह, चले थोड़े से बड़े हो जाएं इंशाल्लाह, फिर आप ज़हनी आजमाइश 25 में तशरीफ ले आइएगा इंशाल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। मैं पंजाब के शहर जिला गुजरात के एक गांव भागोवाल कलां से बोल रहा हूं। मेरा नाम बशीर अहमद है। ये जो प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ये टीमों के लिए तो एक ज़हनी आजमाइश है, लेकिन जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनके लिए ये इल्म का एक खजाना है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, हम पूरा साल इस प्रोग्राम का इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का। इल्म दीन सीखते रहिए और फिर इसे याद भी रखते रहिए। हो सके तो सवालात के जवाबात लिखिए तो इंशाल्लाह इल्म महफूज हो जाएगा। नाज़रीन अगले सेगमेंट का वक्त हो गया है जिसका नाम है इश्क के बोल। जनाब इश्क के बोल सेगमेंट में मुल्तान वालों से सवाल करेंगे। ए नज़्मे रिसालत के चमकते हुए मक्ता,
اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا. تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا. کیا خوبصورت شعر ناظرین. مقتا ہوتا ہے جب پوری نظم یا پورا کلام اس کے آخر میں لکھا جاتا ہے. لاسٹ شعر آف دا پویم کہہ لے، نعت کہہ لے، کسی بھی چیز کا آخری شعر، یہ مقتا ہوتا ہے. کیا خوبصورت مثال دی ہے کہ نظم رسالت جو ہے، یعنی رسالت کے جو سلسلہ ہے اس کو تشبیہ دی ہے مولانا حسن رضا خان صاحب نے کہ ایک نظم رسالت ہے اور اس کا آخری شعر کون سا ہے، اس کا مقتا کون ہے؟ وہ نبی پاک علیہ السلام ہے، کیونکہ آپ سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں. مگر تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا. حضور یہ جو نظم رسالت چمک رہی ہے، جو دمک رہی ہے، جو مطلع انوار بنی ہوئی ہے، حضور آپ آئے تو آخر میں ہیں، مگر یہ ساری رونق آپ ہی کے صدقے ہے. جواب درست دے دیا ہے. اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، تو نے ہی اسے کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. میں موت میں اور قبر میں ثانی ہی رہے. زیست میں موت میں اور قبر میں ثانی ہی رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی اسنین کے اس طرح ہے مظہر صدیق. کیا خوبصورت شعر ہے. اب ذرا سمجھئے ناظرین، زیست کہتے زندگی کو. نبی پاک علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد صدیق اکبر تشریف لائے، دنیا میں آئے. ٹھیک ہے، دوسرے یعنی نبی پاک کے بعد آئے. انتقال دنیا سے پردہ فرمانے میں بھی پیارے آقا علیہ السلام پہلے تشریف لے گئے، اس کے بعد صدیق اکبر. قبر میں بھی پہلے نبی پاک کی تدفین ہوتی ہے، روضہ انور میں دوسرے صدیق اکبر ہیں. تو ثانی اسنین جو ہیں، یعنی دو میں سے جو دوسرا ہے، ثانی جو ہے وہ ہر مرحلے میں ثانی کا کیسا اظہار ہوا ان کی ذات میں. کیا بات ہے سیدنا صدیق اکبر کی. اللہ ان کے مزار پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے اور ہمیں ان کی برکتیں نصیب فرمائے. ثانی اسنین ہیں ابو بکر خدا میرا گواہ. ثانی اسنین ہیں ابو بکر خدا میرا گواہ. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. حق مقدم کرے پھر کیوں ہو مؤخر صدیق، یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس، ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا. ہائے ہائے ستمگر الٹی چھری سے ہمیں ہلاک کیا. کیا شعر ہے یہ. کلام بھی بڑا کمال کا ہے. جو مدینہ پاک سے واپس آ جاتے ہیں تو ایک کیفیت میں ہوتا ہے انسان کہ کیوں واپس آ گیا، کیا ہوا تھا. اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ اے نفس یہ کیسی رائے تھی
वहां से पलटने की तुमने मुझे राय दे दी, वही रहने देता। और ये मुहावरा है उल्टी छुरी से हलाल करना है। सितमगर उल्टी छुरी से हमें हलाल किया, मदीना छुड़वा दिया, और अब यहाँ आके बेचैन हो गया हूं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये राह क्या थी वहाँ से पलटने की, ये राह क्या थी वहाँ से पलटने की, छुरी से हमें हलाल किया, सितम छुरी से हमें हलाल किया। चमन से फेंक दिया आशियानाए बुलबुल, चमन से फेंक दिया आशियानाए बुलबुल। उजाड़ खाना बेकस बड़ा कमाल किया, उजाड़ा खानाए बेकस बड़ा कमाल किया। वही बात हो रही है कि किसी का घोंसला जो है, अगर किसी चिड़िया का या किसी परिंदे का घोंसला उजाड़ दिया जाए, उसका घोंसला निकाल दिया जाए, तो कैसा बेबस हो जाता है वो परिंदा, बेघर हो जाता है। सच्ची बात यह है कि मदीने से आने वाला ऐसे ही फील करता है कि चमन से फेंक दिया आशियानाए बुलबुल, उजाड़ा खानाए बेकस बड़ा कमाल किया। चमन से फेंक दिया चमन से फेंक दिया बुलबुल, उजाड़ा खानाए बेकस बड़ा कमाल किया, उजाड़ा खानाए बेकस बड़ा काबा ओ अर्श में कोहराम है नाकामी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबा व अर्श में कोहराम है नाकामी का, आह किस बज़्म में है जलवा यकताई दोस्त। आह किस बज़्म में है जलवाए यकताई दोस्त। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उनको यकता किया और खल्क बनाई, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनको यकता किया और खल्क बनाई, यानी अंजमन करके तमाशा करें तन्हाई दो, अंजुमन करके तमाशा करे तन्हाई दोस्त। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो अब एक एक शेर ऐसा दिखाया जाएगा कि शेर एग्जैक्टली सही बताना है। 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, तीनों में फर्क है। लफ्ज ब लफ्ज कौन सा शेर दुरुस्त है, मुल्तान वालों की बारी है। जर्रा भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, आप चाहें तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। दिन का भी हमारे तो हिलाए नहीं हटता, तुम चाहो तो हो जाए अभी मुश्के खुतन फूल। दिन का भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन। तीनों में से कौन सा शेर दुरुस्त है? वेरी यूनिक शेर है। जी, तीनों ऑप्शन दोबारा दिखा दें, बताइए कौन सा है। जल्दी करेंगे, 5 सेकंड रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लास्ट तीसरा। दिन का भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। मतलब क्या है हुजूर, हम तो चाहें तो तिनका भी ना हिला सकें, और अल्लाह ने आपको ऐसा कमाल दिया है कि आप पूरे पहाड़ को अगर हुक्म फरमाए तो वो फूल बन जाए। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता,
चाहो तो हो जाए अभी को है मेघन फूल तुम चाहो तो हो जाए अभी को है मेघन फूल। सोना पास है, सोना जहर है, सोना बन है, उठ प्यारे, तू कहता है नींद है मीठी, मत कैसी मतवाली है। सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे, तू कहता है नींद है मीठी, तेरी मत ही निराली है। तीसरा है, सोना बन है, सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे, तू कहता है नींद है मीठी, कैसी भोली भाली है। तीनों में से कौन सा शेर ठीक है? दूसरा। जनाब नाज़रीन, ये शायरी की दुनिया का शाहकार शेर है। जरा स्क्रीन पर सही वाला शेर दिखाइएगा। आला हजरत की क्या बात है। अब देखें, अगर आप परफेक्ट शेर देखें तो 3 बार सोना है, ठीक है, सीन वाव नून अलिफ, ये तीनों बार सोना का, हर बार का माना अलग है। अब जरा समझिएगा, सोना पास है, ठीक है, ईमान का सोना पास है, सूना बन है, बन कहते जंगल को, जंगल सुनसान है, सूना बन है, और अब सोना, अब ये नींद की बात हो रही है, अब सोना जहर है। जिसके पास माल हो और जनाब डाकू चारों तरफ हो, सुनसान जंगल हो, तो वो सोता नहीं है, अब सोना जहर है, उठ प्यारे। अब ऐसी कैफियत में तू कहता है नींद है प्यारी, तेरी मत ही निराली है। यानी आला हजरत जगा रहे हैं ईमान वालों, ईमान के डाकुओं की खबर लो, एहतियात करो, गफलत की नींद न सोना, अपना ईमान बचा के रखना। मगर ये कमाल है कि 3 बार सोना लिखा है, तीनों बार का माना अलग है, और ये शायरी की दुनिया का शाहकार शेर है। अल्लाह आला हजरत के इन अशार के सदके हमें अपने ईमान की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सोना पास गए, सोना बन गए, सोना जहर गए, उठ प्यारे, तू कहता है नींद है मीठी, तू कहता है नींद है मीठी, तेरी मत ही निराली है, कहता है नींद है मीठी, तेरी मत ही निराली। इस कलाम का एक और बड़ा कमाल का शेर है। क्या जबरदस्त मुहावरा इस्तेमाल किया आला हजरत ने। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं। हाँ, अब देखिए कौन सुनाता है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मोहम्मद नईम रजा। वालेकुम अस्सलाम। तेरी गठरी ताकी है, तूने नींद निकाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं। तेरी गठरी ताकी है, तूने नींद निकाली है। यानी कमाल देखें, आला हजरत कह रहे हैं कि जहां ऐसे ऐसे चोर हैं, आंख से काजल कौन चुरा सकता है? काजल तो आंख में लगा हुआ होता है ना। आला हजरत कहते हैं ऐसे चालबाज हैं कि तुम्हारी आंख से काजल भी चुरा लेंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। इतने चालबाजों के दरमियान जी रहे हो और ईमान की गठड़ी ताकी हुई है, इन्होंने छीनना है तुम्हारा सरमाया, और तुमने नींद निकाली है और कहते कोई बात नहीं, सब चलता है। नहीं, हमें ज्यादा चौकन्ना होना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। इंशाल्लाह इन्हें मुबारक पानियों का मजमुआ ये इंशाल्लाह तोहफे में दे रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब, अब जरा एक और शेर सुन लेते हैं, थोड़ा आसान कर देते हैं मेरा ख्याल है। ठीक है, देखिए माशाल्लाह दुनिया पूर में बड़ी तादाद में स्टूडेंट मौजूद हैं और लाइव हमारे साथ शामिल हैं। शायद ये मुल्तान की टीम या मुल्तान टीम में एक इस्लामी भाई दुनियापुर से आए हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है दुनिया में कई जगह पर आशिकान रसूल मिलकर देख रहे होंगे। आप सबको मरहबा कहते हैं। अच्छा जनाब, एक शेर सुनाइए। अब दुनियापुर की बात हो गई तो कोई ऐसा शेर सुना दे जिसमें लफ्ज दुनिया आता हो। लफ्ज दुनिया आता हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा तारी है। कोई दुनिया है अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मैसर ये नज़ारा तेरा।
वाह भाई वाह, पूरा सुना देना आप। के उठे देख के बख्शिश में रुतबा तेरा, वाह क्या जूद करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। वाह भाई वाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। इंशाल्लाह इनको 2 तोहफे इतर और मुतबरक पानियों का मजमूआ इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब, स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले हम इंशाल्लाह कॉल देते हैं जी। मैं उम्मेहानी अत्तारिया पाकपतन शरीफ से। अब्दुल हबीब अंकल, आज मैं भी आपसे ज़हनी आजमाइश करूंगी। आला हज़रत का ऐसा शेर सुनाइए जिसमें 3 मर्तबा लफ्ज दिल आए। उम्मीद है आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त होगा। दिल वाला लफ्ज है 3 बार। दिल है वो, दिल में तो 2 बार आता है ना। दिल, आला हजरत का शेर, मदद करे भाई। सही है साहब। नंबर तो आपको अकेले को मिलने ना हजरत। अच्छा, 3 बार दिल। चलें, ये सवाल का जवाब भी नाज़रीन ही दे दे, अभी इस वक्त तो ज़हन में नहीं आ रहा। दिल है वो, दिल तो आ रहा था याद, लेकिन वो 2 बार है। एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, उसमें तो एक ही दिल है। ठीक है ना, ये मेरा ख्याल है आप पहले जवाब तो दे, जवाब है भी कि नहीं, या मुझे लगा दिया काम पे। चले बहरहाल एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम गुलाम मुश्तबा अत्तारी है। मेरे घर वाले ज़हनी आजमाइश बहुत शौक से देखते हैं। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी से अर्ज है, मैंने शौक मदीने जावरदा, इसका एक शेर तर्ज में सुना दीजिए। चलें वो सुना देते हैं इंशाल्लाह। मेरी अक्ल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी तोर नहीं, पर मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं, आका तेरी मर्जी ये साडा ते कोई जोर नहीं। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब, मरी वालों के 16 नंबर हैं, मुल्तान वालों के 20 नंबर हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है 1500वां जश्न विलादत। जनाब माशाल्लाह, मुल्तान की तरफ से इस्लामी भाई तशरीफ ले आए। मुल्तान में भी एक जगह पर इस्लामी भाई जमा है बताया जा रहा है, और वो भी जमा होकर माशाल्लाह आज का सिलसिला देख रहे हैं। उनको भी हम मरहबा कहते हैं। ये मुल्तान में देखें माशाल्लाह स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब देखिए मुल्तान की टीम क्या करती है। नंबर पसंद करेंगे जनाब, किस नंबर से बॉक्स खोल रहे हैं? 8 नंबर। बताइए 8 नंबर के पीछे क्या है? रोजे के 15 फवाइद। रोजे के 15 तिब्बी फवाइद। जनाब आपका वक्त शुरू होता है अब। मैदे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा मैदे की तकलीफ़ को दूर करता है, बीमारियों को दूर करता है, निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर बनाता है, कैंसर को कंट्रोल करता है और गर्दिश खून में कमी लाता है, जिससे दिल को राहत नसीब होती है और हार्ट अटैक के जो इम्कान है वो कम हो जाते हैं। और जिस औरत की औलाद ना हो, अगर वो रोज़ा रखे तो उसके औलाद होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। रोज़ा जिस्म के तमाम जरासीम पर असरअंदाज होता है जिससे हलाक हो जाते हैं। रोज़ा इंसान की सेहत को अच्छा रखता है और इसी तरह इंसान के हाफ़ज़े को मजबूत करता है, शुगर लेवल को एतदाल में लाता है, कोलेस्ट्रोल का एतदाल में लाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। चलें जनाब, कितने हो गए? 12 हो गए। 3 तिब्बी फवाइद और बयान कर दें। 15 ज़हनी अमराज को, डिप्रेशन को, इनको ख़त्म करता है, जिस्मानी तनाव को ख़त्म करता है। टाइम आपका पूरा हो गया है और आप 15 फिर भी नहीं पहुंच सके। वो 12 नहीं हुए थे, उससे कम हुए थे। बहरहाल आपने बड़ी अच्छी कोशिश की, आपको 1 नंबर दिया जा रहा है। मरी के इस्लामी भाई आ जाएं। एक नंबर खोला है मरी वालों ने। जनाब जोर से बोलें। 15 फवाइद।
सेब के 15 फवाइद, मरी में सेब बड़ा अच्छा होता है जनाब। अब सेब के 15 फवाइद बताइए, वक्त शुरू होता है अब। सेब मैदे को मजबूत करता है, सेब मैदे की बीमारी को दूर करता है, सेब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, सेब कुव्वत हाफजा को बढ़ाता है, सेब नज़र को बढ़ाता है, ऐसा तो ना करे, सेब भी नाराज हो जाएगा। अभी कितने हुए? कितने हुए? टाइम खत्म हो गया है। आप आधे भी नहीं कर सके हैं तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। बचपन से एक जुमला सुनते आ रहे हैं कि वंस एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, एक सेब खा लो तो डॉक्टर दूर हो जाएगा। बहरहाल आइए जनाब, मुल्तान के इस्लामी भाइयों की बारी है और देखते हैं कि ये कितने नंबर, कौन सा नंबर लेते हैं जी। 12 नंबर खोला है इन्होंने। दुरूद पाक पढ़ने के 15 फजाइल। वाह भाई वाह, दुरूद पाक पढ़ने के 15 फजाइल। देखें भाई क्या बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह पाक के हुक्म की तामील होती है। दुरूद पाक पढ़ने, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले के 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 गुनाह मुआफ़ होते हैं और 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत का बाइस है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का बाइस है, मदीने की हाज़िरी का बाइस है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का हकदार बनाएगा। जो एक दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, क़यामत वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुसाफ़हे का शरफ़ पाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जामे कौसर नसीब होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से। और दुरूद पाक पढ़ने वाला दुनिया के गमों से महफूज रहता है, बुराइयों की आदत छूटती है, नेकियां करने की रग़बत पैदा होती है, गुनाह मुआफ़ होते हैं, मग़फ़िरत का बाइस बनता है और मुसीबतें दूर होती हैं, रिज़्क़ में बरकत होती है जी। पूरे हो गए। घर में खैर और बरकत होती है, ईमान पर खात्मा नसीब होता है और पुल सिरात पर रोशनी होगी। दुरूद पाक के तो फजाइल ही फजाइल है, सारी रात बयान करते जाएं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर हासिल कर लिए। मरी वालों की बारी है। जनाब क्या है इस बॉक्स में? 15 फ़र्ज़ नवाफिल नमाजों के नाम। 15 फ़र्ज़ो नवाफिल नमाजों के नाम। जनाब गौर से सुनिए, वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, इशराक, चाश, अवाबीन, तहियतुल वुज़ू, तहियतुल मस्जिद, कुसूफ, सलातुत तौबा, सलातुल लैल, जुमा, ईदैन वगैरह। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। 15 सेकंड में भी 15 नाम बता दिए इन्होंने, माशाअल्लाह। चले जनाब, ये सेगमेंट अब कंप्लीट हुआ। हम पहले कॉल लेंगे, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। कॉल दीजिएगा। अब्दुल खालिक अत्तारी वाकैंट से अर्ज कर रहा हूँ। आज मुल्क के गर्म इलाके से ताल्लुक रखने वाली टीम भी शरीक है और एक ठंडे इलाके से ताल्लुक रखने वाली टीम भी शरीक है। यकीनन मुल्तान तो आप गए ही हैं, क्या आपको मरी में भी जाने का मौका मिला? और आपने माशाल्लाह दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक के सफर इख्तियार किए हैं और हर तरह के मौसमों से आपका वास्ता पड़ा है। तो ये इरशाद फरमाइए कि सबसे गर्म मौसम किस इलाके का आपको लगा और सबसे ठंडा मौसम आपको किस इलाके का लगा, और वैसे फितरती तौर पर आपको कैसा मौसम पसंद है? क्या बात है, अब्दुल खालिक भाई ने पूरा सिलसिले के सवाल भेज दिए हमें। बाहर से बड़ी अच्छी दिलचस्प बात उन्होंने नोट की है कि मुल्तान पाकिस्तान के जब गर्मी पड़ती है तो वन ऑफ द हॉटेस्ट सिटी में होता है। मदीनतुल औलिया मुल्तान की गर्मी मशहूर है। मरी का मौसम वैसे बड़ा अच्छा होता है। मरी कई बार जाना हुआ मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह, बयान के लिए जाना हुआ। दोनों शहर के नाम भी मीम से शुरू होते हैं। पर्सनली मुझे विंटर यानी ठंडा मौसम मुझे पसंद है। और अब इन्होंने कहा कि सबसे ठंडा तो अभी पिछले साल, 1 साल पहले नॉर्वे जाना हुआ था, तो -28-30 डिग्री टेम्परेचर था। उससे पहले एक बार कनाडा गया था, तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बताया जाता था कि वहां भी -30-35 टेम्परेचर था जब मैं विंटर में गया था। तो वैसे कई जगहों पर ऐसी बर्फबारी वाले मुल्कों में गया हूं जब -10, 15, 20 होता है, लेकिन ये वन ऑफ द कोल्डेस्ट था। जो हमने थोड़ी देर के लिए एक नात भी कलाम भी रिकॉर्ड किया था, उसके कुछ मनाजिर आपने देखे होंगे नॉर्वे में। माशाअल्लाह। गर्मी जो है वो
नॉर्मली अरब शरीफ की गर्मी भी ज़ाहिर है कि मक्का पाक में भरपूर हाजिरी देती है। असल में गर्मी बंदे को लगती जब है जब वो गर्मी में बाहर भी निकले। तो नॉर्मली हम पाकिस्तान में किसी मुल्क में होते तो गर्मी में बाहर निकलते नहीं है, लेकिन अगर आप हज कर रहे हैं या आप उम्रा कर रहे हैं और उस वक्त गर्मी का सीजन है तो फिर गर्मी की बरकतें भी खूब मिलती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हरमैन तय्यबैन की गर्मी की बरकतें ज्यादा लूटने की सादत मिली। सुना है कभी आपने हज के अरफात के मैदान के अंदर सख्त सर्दी में भी लकड़े जलाई थी, कुछ वाक़या ऐसा था कुछ? वो अरफात का मैदान नहीं था, हाँ ऐसा था दिसंबर में एक बार ऐसा साल था कि जिसमें माह दिसंबर में हज आया था और उसमें ये हुआ कि इतनी ठंड थी मुजदलिफा में कि बिल्कुल जिसको कहना कि सर्दी ने फुल हाजिरी दी हुई थी। तो अब हम सारे काफिले वालों ने मशवरा किया कि एक तो पानी मुजदलिफा में रश काफी होता है, लाइनें होती हैं वजू के लिए और पानी भी ठंडा ठार। तो मशवरा ये हुआ कि सबने जागना है, सोना नहीं है और वजू भी बरकरार रखना है ताकि हमें फजर के लिए भी आसानी रहे। अब जागे कैसे भाई, ठंड बहुत लग रही है। तो फिर लकड़ियां जमा करके लकड़ियां जलाई गई और उस लकड़ियों के गिर्द दायरा बना के हम सारे बैठ गए और जागने के लिए फिर हमने नातिया अशार का मुकाबला शुरू किया। उसमें किबला मुफ्ती कासिम साहब भी हमारे साथ थे। वो बड़ा यादगार जिंदगी का सफर रहा। तो बहरहाल नाते भी होती रही, जिक्र भी होता रहा और फजर भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह और रात भी गुजर गई। क्या अशार के तकरार तो वहां पर आपने किए थे, वो शेर जिसमें 3 बार दिल आता है। हाँ वो मुझे किसी ने लिखकर भेज दिया है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मुझे याद आ गया है। जो सच्ची बात है वो यही है और अगर ये ठीक भी है कि नहीं, लेकिन मैं पढ़ देता हूं। करता तो है याद उनकी गफलत को जरा रोके, करता तो है याद उनकी गफलत को जरा रोके, लिल्लाह रजा दिल से, हाँ दिल से, अरे दिल से। तो माशाल्लाह आला हजरत का ये शेर मिल गया और जज़ाकल्लाह जिन्होंने भेजा। चले जनाब अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जोश को भी होश को भी आजमाने के लिए जनाब 18 नंबर है मरी के और बताइएगा स्कोर बोर्ड। 23 नंबर है मुल्तान आगे बढ़ते हुए। अगला सेगमेंट जिसका नाम है फिके हनफी और उसके दलाइल। बहुत कमाल का सेगमेंट है। करोड़ों हनफी जिस फिक पर अमल करते हैं, जिन मसाइल पर अमल करते हैं, उस पे इमाम आजम का मौकिफ और दलील क्या है ये जानने का हमें मौका मिलता है। ऊंट की कुर्बानी में कितने हिस्से होते हैं, इससे मुतालिक इमाम आजम अबू हनीफा का मौकिफ क्या है, दलील के साथ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नज़दीक कुर्बानी में गाय की तरह ऊँट में भी 7 हिस्से हैं और जामे तिरमिज़ी की हदीस है हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हमने हुदैबिया के मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानी की और गाय 7 की तरफ से, ऊँट 7 की तरफ से। जी जनाब यही मौके पे इमाम आजम का है कि ऊंट में भी 7 हिस्से होते हैं, 14 नहीं होते। कुछ गलत फहमी होती है लोगों को। गाय में भी 7 हिस्से हैं, ऊंट में भी 7 हिस्से हैं। दलील के तौर पे हमने हदीस भी सुन ली, तिरमिज़ी शरीफ की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रोजा इफ्तार करने का वक्त क्या है, इससे मुतालिक इमाम आजम का मौकिफ दलील के साथ बयान करें। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक रोज़ा इफ्तार करने का वक्त गुरूब आफ्ताब है। सहर इफ्तार का वक्त बयान करते हुए अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल। खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए फजर से सफ़ेदी का डोरा अंधेरे के डोरे से मुमताज़ हो जाए और अपना रोज़ा रात तक मुकम्मल करो। और तमाम तफासिर में इलल लैल की तफसीर बयान करते हुए फरमाया गया कि इससे मुराद गुरूब आफ्ताब है। जी इलल लैल की तफसीर करते हुए मुतअद्दिद तफासिर में यही है कि इससे मुराद जो है वो गुरूब आफ्ताब है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। से बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। कुछ ये बताते थे, कुछ ये बताते थे, मिलजुल के इज्तिमाई जवाब दिया गया है। जरा मुल्तान वालों की बारी है। कुर्बानी के अय्याम 3 हैं या 4, इससे मुतालिक इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का मौकिफ दलील के साथ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नज़दीक कुर्बानी के अय्याम 3 हैं और हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुर्बानी के दिन 3 हैं। इसी तरह हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि कुर्बानी के दिन 3 हैं। जी मौला अली का फरमान भी यही है, कुर्बानी के दिन 3 हैं और इमाम आजम का भी यही मौकिफ है कि 4 नहीं
3 दिन कुर्बानी के हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या सजदे में पेशानी और नाक का जमीन पर लगना जरूरी है? इससे इमाम आजम अबू हनीफा का इसके मुतालिक क्या मौक़िफ़ है, दलील के साथ बयान करें। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सजदे में पेशानी का जमना फ़र्ज़ है और नाक का जमना वाजिब है। इसे दलील के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म हुआ है, 2 पाँव के किनारों के, 2 घुटनों के और 2 हाथों के और पेशानी के। और सजदे में पेशानी का इस नाक के नरम हिस्सा इस तरह जमे कि हड्डी भी जम जाए। जनाब इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक, गौर से सुन लें, सजदे में पेशानी का जमीन पर जमाना फर्ज और नाक की हड्डी का जमीन पर यूं जमाना कि नाक का नरम हिस्सा दबने के बाद नाक की जो हड्डी है वो जमीन पर जम जाए, ये वाजिब है। और दलील क्या है? कुतुबे सिया सित्ता यानी सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिजी, सुनन इब्ने दाऊद, सुनन निसाई, सुनन इब्ने माजा यानी सारी सिया सित्ता की किताबों में हदीस मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुझे 7 हड्डियों पर, अब वो 7 हड्डियां कौन सी हैं? पेशानी, और साथ ही नबी पाक ने अपने हाथ से अपनी नाक की तरफ इशारा फरमाया, फिर दोनों हाथों, दोनों घुटनों और दोनों कदमों के किनारों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। और ये कि हम नमाज पढ़ते हुए कपड़े और बाल न समेटें। तो इस सजदे का पूरा तरीका नबी पाक ने बयान फरमाया। तो बाज़ औक़ात लोग सजदा करते हैं, नाक की नोक लगाते हैं, पेशानी सही नहीं जमा रहे होते, तो ये सजदे में लगना जरूरी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लगे हाथों में अर्ज करता चलूं नाजरीन, दावत इस्लामी कमाल की तहरीक है, हमें नमाज भी सिखाती है और एक बड़ा कमाल का कोर्स होता है दावत इस्लामी के माहौल में, नमाज कोर्स। अगर आपने अभी तक ये कोर्स नहीं किया तो ये कई मकामात पर 7 दिन का होता है, कभी कभी ये यूँ समझिए कि पार्ट टाइम भी हो रहा होता है, कहीं ऑनलाइन भी होता है। तो आप प्लीज़ दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान से रब्ता करके आप नमाज कोर्स कर लें। फैज़ान नमाज कोर्स के ज़रिए आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत सारी बेसिक्स हैं नमाज की जो हमारी दुरुस्त नहीं है। तो इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें ज़रूर ये कोर्स करके अपनी नमाज को बेहतर कर लें, दुरुस्त कर लें। अब नाज़रीन चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ, मगर एक कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम आयजा तारिया है, मैं मुल्तान से अर्ज कर रही हूँ। अब्दुल हबीब अंकल अर्ज है कि इस मर्तबा उम्मत के रंग सेगमेंट में रांगड़ी जबान को भी जरूर शामिल कीजिएगा। रांगड़ी जबान जरूर शामिल कीजिएगा। चलें जनाब, कॉल आ गई है। अब देखिए हमारी मजलिस क्या करती है। कुछ सिलसिले हैं और हजारों जबानें हैं, कैसे होगा देखते हैं। एक और कॉल दीजिएगा। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनतुल उलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह से ज़हनी आजमाई सीजन 17 सिलसिला बहुत प्यारा चल रहा है। माशाल्लाह से आज हमारी मुल्तान की टीम ज़हनी आजमाई सीजन 17 में पहली मर्तबा आई। मैं इंशाअल्लाह मुल्तान की टीम को भी सपोर्ट करता हूँ। मुल्तान में तो खैर मुल्तान की टीम तो कई बार आई है, पहली बार तो नहीं है, शायद इस्लामी भाई पहली बार आए होंगे। आइए जरा आप देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 22 नंबर मरी के हैं, 27 नंबर मुल्तान के हैं। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है तलाश कीजिए। मुल्तान के स्लैम में तशरीफ ले आए, बारी आपकी है, तलाश करना है। और क्या तलाश करना है? आपने लफ्ज अली तलाश करना है। मार्कर वहां मौजूद है, मौला अली का नाम, सिर्फ अली आपने तलाश करना है और आपके पास 30 सेकंड है। बहुत बड़ा बोर्ड है और लफ्ज तलाश करना बाज़ औक़ात आसान नहीं होता। स्क्रीन पर आप जो मौजूद हैं वो भी तलाश करें। अली, जल्दी करेंगे, 3 सेकंड रह गए। अली, या अली, वक्त खत्म हो गया जनाब, आप तलाश नहीं कर सके हैं, अपनी जगह तशरीफ रखेंगे। चलें, कौन है जो हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में तलाश करेगा? यहाँ तो इतने सारे हाथ खड़े हो गए, लगता है इन्होंने ढूंढ लिया किसी ने। नहीं, वो तो ढूंढे ना ढूंढे, इनका क्या जाना है, ठीक है ना। हमने 3 दिन का काफिला लेना है इनसे, पक्की नीयत के साथ, तारीख के साथ। चलें जल्दी जल्दी, ये नाम तलाश करेंगे, मालादत का शेर सुनेंगे। सुभान अल्लाह, सुना दे भाई, शेर भी सुना दे। 3 दिन काफिला, जल्दी। जो टीम में वो ना आए, मेहमानों को मौका दें, आ जाएं, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए।
اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا، وہ ہے۔ ٹائم تو ختم ہو گیا ہے، آپ نے 3 دن قافلے کی قافلے کی 12 دن کر دو نا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پکا ہو گیا؟ کب کریں گے؟ نومبر کے مہینے میں؟ ویسے ہی قافلے میں آئے ہوئے، چلیں بھائی اب یہ دیکھیں کیسا جگمگا رہا ہے میرے مولا علی کا نام۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ چلے بھائی اب باری ہے مری والوں کی، آجائے جناب۔ آپ کی باری ہے، تشریف لے آئیں۔ اور آج چونکہ پنجتن پاک کی بات ہو رہی ہے تو حسن نام تلاش کریں گے۔ حسن، 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، امام حسن کا جگمگاتا نام تلاش کریں۔ کیا بات رضا اس چمنستان میں کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان میں کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو۔ حسن کا نام ڈھونڈا ہے، اب امام حسین کا نام حسین ڈھونڈیں۔ حسین، حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ ماشاءاللہ، ملتان والوں نے امام حسین کا جگمگاتا نام ڈھونڈ لیا ہے۔ اب باری مری والوں کی ہے، آ جائیں جناب۔ آپ کی باری ہے، لفظ فاطمہ تلاش کریں۔ فاطمہ، کیا بات ہے، مری والے اس کام پہ لگتا ہے تیز ہیں بھائی، آتی کر لیتے ہیں حل ماشاءاللہ۔ جن کی ماں فاطمہ بابا علی، جن کے بھائی حسن اور نانا نبی۔ ماشاءاللہ، چلے جناب، دونوں ٹیموں نے جواب دے دیے، مری والے کچھ قریب آئے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اور کتنے قریب آتے ہیں۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں، وقت ہوا ہے اپنے نیک اعمال کا جائزہ بھی لیں گے، نعت خوانی بھی کریں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے اور پھر مقابلے کو لے کر آگے چلیں گے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن اسلامی بھائیوں کے پاس نیک اعمال کے رسائل ہیں وہ اپنے اپنے رسائل نکال لیجئے، اور جن کے پاس رسائل نہیں ہے وہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی نیک اعمال کا جائزہ کر سکتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نیک اعمال کا جائزہ کرتے ہیں، اچھی اچھی نیتیں کی۔ نمبر 2، 5 نمازیں با جماعت ادا کی۔ نمبر 3، ہر نماز سے پہلے نماز کی دعوت دی۔ رات میں سورہ ملک پڑھ یا سن لی۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ اور سورہ اخلاص پڑھی۔ کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات پڑھ یا سن لیے۔ سجرے کے اوراد پڑھے، 313 بار درود پاک پڑھے۔ آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی۔ 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی۔ اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی۔ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا۔ عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں میں صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا
मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ुहर की सुन्नत कबलिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराक चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत कबलिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से किसी एक काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, ग़ीबत और चुगली से बचे, कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा किया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल तायीद न करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज़ कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ाकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्करी, तंज, दिल आज़ारी और कहकहा लगाने से बचे, अमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास के साथ इन नेक अमाल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आइए वक्त हुआ है नाजरीन, नात शरीफ में शब्द शामिल हो जाए इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, मदफन बने हमारा, मदफन बने हमारा, मदफन बने हमारा, सरकार का मदीना। पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अली रहमत रहमान का बहुत ही प्यारा कलाम आइए मिलकर पढ़ने की सादत हासिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लम याती नज़ीरुका फी नज़र, लम याती नज़ीरुका फी नज़र, लम याती नज़ीरुका फी नज़र, लम याती नज़ीरुका फी नज़र। मिसले तो न शुद पैदा जाना, मिसले तो न शुद पैदा जाना, राज को ताज तोरे सर, जग राज को ताज तोरे सर, है तुझको शागे दो सरा जाना, है तुझको शागे दो सरा जाना, है तुझको शागे दो सरा जाना, है तुझको शागे दो सरा जाना। आना फिया तशवा सखा, आना फिया तशवा सखा, गेसुए पाके अबरे कर, गेसुए पाके अबरे कर, गेसुए पाके अबरे करो बर सहारे रे जुरे में, बर सहारे रे जुरे में, रे जुरे में, जुरे जुरे में, रे जुरे में, जुरे जुरे में। दो बूंद इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। तो वो
طوفان ہو شیر و غم بے کسو طوفان ہو شیر و غم جھار میں ہو بگڑی گئے غم دھار میں ہو بگڑی گئے غم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سفینے کے پرکھچے اڑ چکے گے زور طوفان میں سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ منج دھار میں ہوں بگڑی گئے غم منج دھار میں ہوں بگڑی گئے غم منج دھار میں ہوں بگڑی گئے غم موری نیا پار لگا جا 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 الروح فداک فزد غرق الروح فداک فزد غرق یک شعلہ دیگر بر زرش یک شعلہ دیگر بر زرش کا مورا ترمل دھر سب پھونک دیا مورا ترمل دھر سب پھونک دیا 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 یہ جان بھی پیارے جلا جا یہ جان بھی پیارے جلا جا موری نیا پار لگا جا موری نیا پار لگا جا آج سکھ میں تیرا دیوا دھیرے آج سکھ میں تیرا دیوا دھیرے کیوں دلڑی اداس گھنے رے کیوں دلڑی اداس گھنے رے لولو وچ شوق چگرے لولو وچ شوق چگرے آج لایا کیوں جھڑے آج نے لایا کیوں جھڑے آج نے لایا کیوں جھڑے آج نے لایا کیوں جھڑے اس صورت نو میں جانا اس صورت نو میں جانا جانا کھا کے جانے جانا جانا کھا کے جانے جانا جانا کھا کے جانے جانا سچ آقا کے رب دی میں شانہ سچ آقا کے رب دی میں شانہ جس شان تو شانہ سب بڑے نینا لایا کیوں جھڑے آج نینا لایا کیوں جھڑے سبحان اللہ ما اجمل سبحان اللہ ما اجمل ما آسان کما اکمل ما آسان کما اکمل ما آسان کما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری ساس کتے میرے علی کتے تیری ساس مشتاق آنکھیں کتے جاڑے جنے لایا کیوں جھڑے جنے لایا کیوں جھڑے بس بس خامائے خام نواگے رضا بس بس خامائے خام نواگے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میں
नाचार सिलसिला पड़ा जाना मोर नैया पार लगा जा मोरी नैया पार लगा जा मोरी नैया पार लगा जा मोरी नैया पार लगा जा मोर नैया पार लगा जा मोरी नैया नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का एक शोबा है FGRF, फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन, सरकार अलैहिस्सलाम की दुखियारी उम्मत के लिए दुनिया भर में कोशिशें कर रहा है। पिछले दिनों पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब आया, बिलखुसूस जनूबी पंजाब में बहुत ही ख़तरनाक सैलाब, और बहुत सारे लोगों को तो वहाँ तकलीफ़ पहुँची, शहादतें भी हुई, घर भी तबाह हुए। मुसलसल वहाँ काम FGRF की तरफ से जारी है। निगरान शूरा भी तशरीफ़ ले गए थे पिछले दिनों। FGRF के हमारे डिज़ास्टर के जो निगरान हैं हाजी शफात अत्तारी आज हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी वहाँ गए। कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं, फिर शफात भाई से इंशाल्लाह बात करते हैं कि किस तरह दावत इस्लामी का ये शोबा आज भी ग्राउंड पर मौजूद है और काम कर रहा है। आइए एक वीडियो देखते हैं। मैं हाजिर हूँ जलालपुर पीर वाला में, ये वही इलाका है जिसे सैलाब ने तहस नहस कर दिया है। चलो आओ चलो आओ खुशी बांटे गलत यूं इनके गम कर दे चलो आओ खुशी बांटे गलत यूं इनके गम कर दे लबों को मुस्कुराहट दे दुखों का बोझ कम कर दे लबों को मुस्कुराहट दे दुखों का बोझ कम कर दे। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई, शुरू से मैं देख रहा हूँ इन लोगों ने खिदमत की हुई है, दिन रात खिदमत कर रहे हैं। जब सैलाब आया था उस दिन से लेकर अब तक ये लगे हुए हैं। परेशानी में लोगों मैं हाजिर हूँ जलालपुर पीर वाला में, ये वही इलाका है जिसे सैलाब ने तहस नहस कर दिया है। यानी कि मीलों मील इलाके के अंदर पानी ही पानी था। कई दिनों तक हमारी बोट्स ने यहाँ रेस्क्यू किया और लोगों को जनाब उनके घरों से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। ये वही इलाका है कि जहाँ अब तक अल्हम्दुलिल्लाह FGRF के तहत लाखों लाख लोगों को पका हुआ खाना और पीने का साफ पानी प्रोवाइड कर चुके हैं। ये वही एरिया है कि जहाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन के अंदर अल्लाह की रहमत से हजारों अफराद के लिए राशन का इंतजाम किया गया है। बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह टीम जमा थी और दूर तक लोग फैले हुए हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, अब ये लोग राशन लेके जा रहे हैं। 20 से 25 किलो का राशन का ये एक बोरा है और इसमें सामान आप देख सकते हैं 15 किलो आटा है। उसके बाद जनाबे वाला इसमें चावल है, दाल है, माचिस है, घी है और जनाबे वाला इसके अंदर चीनी है, साबुन है बर्तन धोने के और दूसरे सौंप हैं, सर्फ है और ज़रूरत की अशिया हैं। ये तमाम चीज़ें आपके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह FGRF करती है। हम चाहते हैं हमारा घर बना कर दिया जाए, हम मुतासर हैं सैलाब से। सर्दियाँ आ रही हैं, कपड़े जो है थे वो बह गए थे, सामान जो है हमारा बह गया था। एक अम्मी है, एक मैं हूँ, मेरा अबू नहीं है, तफा गरीब हूँ। आदल ने बकरियाँ लेके वो अम्मी करती थी और एक बकरी मर गई है, 2 हैं बीमारी की वजह को पानी खड़ी रह गई है, सारा कराने ला कोई का नहीं, तफा गरीब हैं। आपने डोनेशन दिया, हमने आपको डोनेशन हकदार तक पहुँचाया। दुआएं जो हमें मिल रही है उसमें आपका भी हिस्सा है। तो इस तरह लोगों की दुआएं लें, इन दुआओं की बरकत से बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। हम साथ दे मिलके चलो, हम साथ दे एक दूसरे का है एहसास, कोई भूखा ना रह जाए। जब सैलाब आता है तो ये नहीं देखता घर किसका है। बहुत सारे ऐसे लोग
کہ جو اسپیشل پرسن تھے, سن نہیں سکتے تھے یا دیکھ نہیں سکتے تھے یا بول نہیں سکتے تھے یا ہاتھ پاؤں سے معذور تھے, جس طرح بھی پرابلم میں تھے, الحمدللہ ہم نے ایک ذمہ دار مقرر کیا, کیونکہ دعوت اسلامی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اسپیشل پرسن پہ کام کرتا ہے. ہمارے عبداللہ بھائی ماشاءاللہ یہ خود بھی اسپیشل ہیں, بول نہیں سکتے اور سن بھی نہیں سکتے, تو ماشاءاللہ یہ ذمہ دار تھے. تو انہوں نے ایسے سیلاب متاثرین کو تلاش کیا جو خود بھی سن نہیں سکتے یا بول نہیں سکتے, اور ماشاءاللہ ڈیلی ان کے لیے کھانا بنا کر جاتے تھے, انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے, ان تک کھانا پہنچایا کرتے تھے. تو یہ آپ کی دعوت اسلامی, یہ آپ کی FGRF کہ کس طرح ہر طبقے کے اندر جا کر فلاحی کام بھی کر رہی ہے اور دینی کام بھی کر رہی ہے. تو آگے بڑھیے اور اپنے FGRF کا ساتھ امیر سنت نے ہمیں بڑا ہی پیارا بدنی مقصد دیا ہے, مل کر دہراتے ہیں, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ شفاعت بھائی ہمارے ساتھ ہیں. شفاعت بھائی جب سیلاب آیا تھا آپ ان دنوں میں بھی گئے تھے, ابھی بھی آپ ہو کر آئے ہیں, اور میں نے دیکھا کہ ہزاروں لوگوں تک آپ نے یہ تقسیم کیا ہے. کیا حالات ہیں وہاں پر؟ اب بھی لوگ مشکل میں ہیں؟ جی عبدالحبیب بھائی, لوگ ابھی بھی بہت تکلیف میں ہیں, بہت پریشانی میں ہیں, اور اس وقت پرابلم یہ ہے جو زیادہ ان کو ایک نیڈ ہے وہ یہ ہے کہ آگے سردیاں آ رہی ہیں. پنجاب میں تو سردیاں تقریباً آ گئی ہیں, رات کو بہت ٹھنڈ ہوتی ہے, وہ کمبل یا اور رضائیاں یا یہ لیتے ہیں رات کو. تو یہاں پر جب اس بار ہم گئے تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ آگے سردیاں آ رہی ہیں, اور کھلے آسمان تلے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رات کو ابھی بھی لوگ وہاں کھلے آسمان تلے, بالکل ہم نے دیکھا ہے کہ چارپائی کھلے آسمان کے نیچے تھی اور وہیں وہ سو رہے تھے. کچھ لوگوں نے ٹینٹ ان کے پاس تھے تو وہ خیمے میں سو رہے تھے. ایک فیملی کے پاس ہم رات کو گئے تو 8 خیمے لگے ہوئے تھے. تو بتایا کہ یہ 8 فیملیاں ہیں, دادا ہیں تو ان کے بیٹے تو ان کے بچے, وہ سب شادی شدہ ہو گئے. تو 8 خیمے تھے, 8 میں 8 فیملیاں تھیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تو چلو گزارا ہو جاتا ہے, لیکن جیسے سردیاں بڑھیں گی تو یہ خیمہ ہمارے ناکافی ہوگا, ہمیں کچھ بھی کر دیں, ایک گھر بنا دے. تو ہم نے ایک بہت ہی اس کو کہہ لیں کہ منیمائز کر کے اگر پیکیج ان کے لیے وہ یہ بنایا کہ اینٹیں جو گھر گرے تھے وہ پڑی ہوئی ہیں, بہت ساری جگہوں پر گارڈر ان کے رکھے ہوئے ہیں, PR ان کی رکھی ہوئی ہے. اگر ہم لاکھ روپے بھی ایک بندے کو دینا شروع کر دیں نا, تو یہ بیچارے خود محنت کر کے, مزدوری کر کے, پرانی اینٹیں استعمال کر کے کہتے ہیں کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہمارے آنسو بجھ جائیں گے, تو ہمیں انعام آپ کر کے دے دیں. تو ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جس طرح ہمیں ڈونیشن آئے گا اس طرح ہم ان کو کم از کم. اب تک آپ کروڑوں روپے تقسیم کر چکے ہیں. جی اللہ کی رحمت. یہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ہماری ڈسٹریبیوشن ہوئی, تو اب یقین کریں سیلاب متاثرین میں 6000 کا ایک راشن بھی دیتے ہیں نا, اور 5-6 ہزار لوگوں کو دیتے ہیں, تو کروڑوں روپے یوں چلے جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. ایسا یہ تعداد بہت زیادہ ہے. کروڑ روپے ہم اس 2025 کے سیلاب میں خرچ کر چکے ہیں الحمدللہ. آپ نے گھروں کے لیے بھی بہت سارے لوگوں کو پیسے دیے ہیں, مسلسل دیتے ہیں. بالکل گھروں کے لیے بھی دیے ہیں, بلکہ 2022 کے سیلاب کے اب تک لوگ ہمارے پاس ہیلپ کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. بہت بڑا وہ بھی ایک ڈیزاسٹر تھا, لیکن ابھی ہم نے اسٹاپ کر کے صرف 2025 کے سیلاب کے لوگوں کی خدمت اسٹارٹ کی ہوئی ہے, اور ہم نے ابھی 2500 راشن علی پور میں ڈسٹریبیوٹ کیے. 2500 ہم نے ایکچولی یہ جو ایریا جو ڈسٹرب ہے یہ علی پور اور اس کے اطراف. جی ہاں, یہ علی پور, سیت پور اس کا پورا ایریا ہے. اصل میں علی پور یہ مظفر گڑھ کی ایک تحصیل ہے جس کی 14 UC ہیں, جن میں سے 12 UC مکمل تباہ ہو گئی ہیں. اللہ اکبر. اونلی شہر بچا تھا صرف علی پور کا. یہ 2025 میں جو سیلاب آیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیر بابا کا ایریا تھا, وہاں سے یہ شروع ہوا خیبر پختونخوا, اور اس کے بعد وہاں سے تباہی مچاتا جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ اس ایریا میں تباہی ہوئی. 1-2 اور ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. چلو آؤ خوشی بانٹے, غلط یوں ان کے غم کر دے. چلو آؤ خوشی بانٹے, غلط یوں. ناظرین میں حاضر ہوں اس وقت علی پور میں, جو مظفر گڑھ کی تحصیل ہے. علی پور, سیت پور, بار بار آپ نے میڈیا پر یہ نام سنا ہوگا, اور یہاں بہت زیادہ سیلاب نے تباہی مچائی. سینکڑوں افراد کی یہاں پر جو ہے وہ شہادتیں ہوئیں, وہ انتقال کر گئے. ایک بہت بڑی تعداد ان کی ہے جو زخمی ہوئے, اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جو بے گھر ہو گئے, آزمائش میں ہیں, تکلیف میں ہیں, دکھ میں ہیں, درد میں ہیں. ہم ڈے 1 سے ہی علی پور, سیت پور اور اس پورے ایریے کے اندر اپنے امدادی کام جاری رکھے ہوئے ہیں. FGRF ڈے 1 سے یہاں حاضر ہے. لیکن میں آپ کو آج عرض کروں کہ آج الحمدللہ 27 اکتوبر کو ایک بہت گرینڈ ڈسٹریبیوشن ہے جو علی پور اور سیت پور کے اطراف میں ہے. ہزاروں افراد یہاں جمع ہیں, اور الحمدللہ ان میں پانی کے کولر, راشن اور اس کی ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ جاری ہے. دکھوں میں اور پریشانی میں لوگوں کو سہارا دے, دکھوں میں اور
वक्त अलीपुर में हाजिर हैं। दिन में हज़ारों अफराद में राशन की डिस्ट्रीब्यूशन किए और अब शाम का वक्त हो गया है और यहाँ ऐसे लोगों को जमा किया है कि जिन बेचारों के घर गिर गए और खुले आसमान तले ये पड़े, तो फौरी तामीर तो घर की नहीं हो सकती, तो हमने इनको टेंट्स दिए हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ टेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। साथ और मजीद जो इनकी नीड है उस चीज़ को पूरा किया जाएगा। चलो आओ खुशी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कुछ टेंट्स हम लोगों को दे रहे हैं। इनके हाथ में कुछ आप देख रहे हैं कि किसी के हाथ में घी है, तो किसी के हाथ में दाल है, तो किसी के हाथ में चावल है। ये क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह कराची में आर्मी पब्लिक स्कूल है। आर्मी पब्लिक स्कूल की जानिब से माशाअल्लाह सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ इमदादी सामान भेजा गया था, जिसमें ये सामान भी था, कुछ घी थे, कुछ चावल थे, तो कुछ दालें थी, इस तरह की चीज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी पब्लिक स्कूल कराची से हमें दी गई थी कि ये सैलाब मुतासरीन में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो माशाअल्लाह आज अलीपुर के इलाके में आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से दिए जाने वाला ये डोनेशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह वाला हमारी पाक आर्मी की हिफाजत फरमाए, पाक फौज की हिफाजत फरमाए और आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से ये जो अतिया किया गया है सैलाब मुतासरीन के लिए, अल्लाह पाक इन सब की कोशिशें कबूल करे। अल्लाह पाक वतन अजीज़ के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमाए और इसकी बेहतरीन जज़ा इन्हें दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ इदारे भी दावत इस्लामी के शोबे FGRF के साथ मिलकर करते हैं। आपने देखा कि हज़ारों लोगों को राशन के बाद ये हज़ारों लोगों की इमदाद का एक और तकरीब भी हुई, टेंट्स भी तकसीम किए। इस दौरान एक और हादसा भी हुआ, उसकी भी एक मंजर आपको दिखाते हैं और फिर बात को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम साथ दे, हम साथ दे, मिलके चलो, हम साथ दे। जी अलीपुर में आज सारा दिन हमारा गुजरा और यहाँ अल्लाह की रहमत से राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किए, टेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए और इस वक्त मुझे यहाँ के हमारे जो जिम्मेदार हैं वो लेकर आए हैं अलीपुर के मज़ाफ़ात में एक बस्ती है, बस्ती आराई। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस बस्ती में जब सैलाब आया तो उसमें 3 अफराद की डेथ हो गई, इंतकाल कर गया, जिनमें से 2 FGRF के वॉलंटियर भी थे। बता रहे हैं 1 हफ्ते तक वो शहर से पका हुआ खाना लेकर यहाँ आते थे और यहाँ लोगों को खाना देकर जाया करते थे। और इस एरिया में बता रहे हैं कि जहाँ 10-10 फुट पानी भी था, कहीं 6-6 फुट भी पानी था, बहुत यहाँ पानी था, तो वो खाना यहाँ देने आया करते थे और हमारी बोट्स भी यहाँ चला करती। आज तो हम गाड़ी में यहाँ आए, अब पानी उतर गया है, लेकिन वो 2 लड़के 1 हफ्ते तक यहाँ खाना लाकर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, FGRF की जैकेट से पहनकर, और ये सारे काम करते थे। वो 2 भी इसी बस्ती में इंतकाल कर गए। एक जगह पर गड़ा था, वहाँ 25 फुट पानी था और वो बेचारे जो है वो उनको अंदाज़ा ना हुआ, उस पानी में गए तो वापस ही नहीं आए। अल्लाह ताला उन दोनों, बल्कि तीसरा जो 15 साल का एक और बच्चा डूब गया, अल्लाह ताला तीनों की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, ये है वो चेहरा कि किस तरह लोगों की खिदमत करते करते दुनिया से चले जाते हैं और अपना जान से, अपनी माल से, यानी कि वो लोग जो है आका की दुखियारी उम्मत की खिदमत करते हैं। चलो आओ, चलो आओ। नाज़रीन, आपने ये देखा किस तरह FGRF खिदमत कर रही है दुखियारे मुसलमानों की। FGRF का साथ दीजिए और यकीनन ये पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान और दुनिया भर के दुखियारे मुसलमानों की मदद करती है, तो अपना साथ दीजिए। ज़्यादा ज़रूरत, जैसे आपने बताया कि अब सर्दी आ रही है तो घरों की हाजत है, उनको शेल्टर की हाजत है। मज़ीद कुछ फरमाना चाहेंगे आप? मैं अर्ज़ करूँगा अब्दुल्ला भाई, जो अभी आपने आखिरी वीडियो देखी, इसमें एक ऐसा नौजवान भी इंतकाल कर गया जो FGRF का वॉलंटियर था, कि जब हम उसके घर गए तो बहुत सारी आँखें वहाँ आबदीदा हो गई कि वो नौजवान जिसका इंतकाल हुआ, उसकी माँ बेवा थी, वो लड़का, उसकी एज अप्रॉक्सीमेटली 25 साल थी, वाहिद कमाने वाला था और उसकी वो इकलौता भाई था और 3 बहनें थीं और ख़ुद शादीशुदा था और उसके अपने 3 बच्चे, जिनमें 1 बेटा और 2 बेटियां थीं, यानी कि 3 बच्चे यतीम हो गए। माँ पहले ही बेवा थी, अब कोई और सहारा ना रहा, 3 बहनें, पूरा का पूरा घर गम में डूब गया है। और वो आलम था कि यानी कि अहले महल्ला भी उनकी कंडीशन देखकर वो रो रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह FGRF ने उनके लिए भी एक अच्छा पैकेज का ऐलान किया है, वहाँ उनको बताकर हम आए कि इंशाल्लाह फैमिली के लिए FGRF इंशाल्लाह कुछ करेगी और अच्छा करेगी इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तमाम शुहदा की मग़फ़िरत फरमाए। इसमें एक बात सीखने को मिलती है कि जो भी इमदादी काम करें वो एहतियाती तदाबीर के साथ करें और जो भी प्रिकॉशंस हैं उसकी तरबियत लें, फिर पानी में उतरना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर यकीनन आपने भी बात की होगी और बाज़ औक़ात लोग जज्बाती होकर भी ये काम कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल आपने इमदादी काम करने हैं, मगर पहले अपनी जान भी बचानी है और फिर दूसरों की जान बचानी है। अल्लाह बहरहाल इन सब की मग़फ़िरत फरमाए। उस इलाके के रहने वाले थे, उनको तो पहले पता होना चाहिए कहाँ कैसा पानी था। बहरहाल अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, ये भी एक चेहरा है दावत इस्लामी का, ये भी एक अंदाज़ है सरकार की दुखियारी उम्मत की खिदमत करने की। अल्लाह शफ़ात भाई आपको, FGRF के तमाम इस्लामी भाइयों को जज़ाए खैर दे और हम सबको
अपनी दावत इस्लामी का FGRF का भरपूर साथ देने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया अदा करूंगा उन तमाम डोनेशंस देने वालों को जो दावत इस्लामी को FGRF का ताउन करते हैं। आपके डोनेशन का शानदार इस्तेमाल दावत इस्लामी और FGRF यूं करती है। वक्त हुआ है रोजाना एक हदीस पाक की वीडियो दिखाते हैं। एक हदीस पाक आपको कल बताई गई थी, आइए उसकी वीडियो देखते हैं, फिर आज की हदीस पाक बयान करेंगे। अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ और ये बतौर फख्र नहीं कहता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ और ये बतौर फख्र नहीं कहता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ और ये बतौर फख्र नहीं कहता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ और बतौर फख्र नहीं कहता। माशाल्लाह, बड़े प्यारे प्यारे बच्चों ने बड़ी प्यारी हदीस रिकॉर्ड करके भेजी। अच्छा, हमें वीडियोस काफी आती हैं मगर वो एक दिन के बाद आती है, यानी कल वाली हदीस की वीडियोस आज भी आ रही हैं तो वो फिर नहीं चल सकेंगी ना, क्योंकि रोज नई हदीस है। तो आप रात में ही वीडियो भेज दें या कम से कम अगले दिन दोपहर 12 बजे तक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हमें वीडियोस भेज दें ताकि वो एडिट होकर चल सकें। आज की हदीस बहुत ही कमाल की है, बुखारी शरीफ की हदीस है। स्क्रीन पर आप देखेंगे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसकी नजर में उसके बाप, उसके बेटे और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। ये हदीस पाक नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी वीडियोस भी बना के भेजें। और ये इसमें कितना प्यारा दर्स है कि नबी पाक से मोहब्बत करनी है मगर सबसे ज्यादा करनी है। नाज़रीन, आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 26 नंबर मरी, 29 नंबर मुल्तान। अगला सेगमेंट जिसका नाम है कुरानी मालूमात। मुल्तान वालों से सवाल है, मक्की सूरतें कितनी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद 86 है। जी जनाब, मक्की सूरतों की तादाद 86 है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए मदनी सूरतें कितनी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में मदनी सूरतों की तादाद 28 है। 28 मदनी सूरतें हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे तवील नाम किस सूरत का है? सूरत की बात नहीं हो रही, नाम किसका तवील है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तवील सूरत का नाम सूरह बनी इसराइल है। सूरह बनी इसराइल ये सबसे बड़ा नाम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक की किस सूरत में सबसे ज्यादा अस्माउल हुस्ना है? अल्लाह के मुबारक नाम। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा अस्माउल हुस्ना सूरह हश्र में। सूरह हश्र में है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। पुरानी मालूमात सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। कितनी प्यारी यूनिक मालूमात हमें मिलती है। आइए कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। तारी हुजरा शाह मुकीम जिला काड़ा से अर्ज कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सीजन 16 में टीम पाक पतन की नुमाइंदगी का शरफ भी हासिल हुआ। माशाअल्लाह सीजन 17 अपनी खूब बरकतें लुटा रहा है। हुजूर आपसे गुजारिश है कि ये वाला शेर तर्ज के साथ सुना दीजिए। कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत। चलें, आपकी दिलजोई की नियत, आप भी कोई काफले की नियत कर लेना इंशाअल्लाह। वैसे ही माह नवंबर माह काफला है इंशाअल्लाह। कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। आइए नाजरीन, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 30 नंबर है मरी के, 3 नंबर से मुल्तान वाले आगे हैं। 33 नंबर। आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा किसने आगे जाना है और सेगमेंट का नाम है सफर है मगर अकेले ना। मुल्तान के एक इस्लामी भाई मरी चले जाएं, मरी की टीम में जाएंगे। मौसम अभी इंजॉय नहीं कर सकेंगे, सिर्फ यहां तक ही आएंगे। आप भी खड़े हो जाएं और
मरी वाले मुल्तान में, गर्म इलाके वाले ठंडे इलाके वालों के साथ, ठंडे वाले गर्म वालों के साथ। अब जनाब 5 सवाल हैं, सही कहना है या गलत कहना है, और कुछ नहीं कहना है। हसन अफजल हैं, मुल्तान से ताल्लुक है। मुहर्रम शरीफ को हजरत उस्मान गनी, 10 मुहर्रम शरीफ को हजरत उस्मान गनी की शहादत का वाकया पेश आया। गलत। बार शरीयत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने लिखी। गलत। सूरह तौबा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी होती। सही। इमाम मुस्लिम बचपन में नाबीना हो गए थे। गलत। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। गलत। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब्दुल सुभान मरी से ताल्लुक है। हजरत उम्मे साद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने ईसाले सवाब के लिए कुआं खुदवाया था। सही। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला की वालदा का नाम उम्मे रोमान था। गलत। यौम अरफा 10 जुल्हिज्जा को होता है। सही। लंबे नाखून शैतान की नशिस्तगाह नहीं है। गलत। हजरत उस्मान गनी का बाजार मुबारक मक्के में है। गलत। ठीक ठाक गलतियां हो गई हैं आपसे जनाब। पहले तीनों सवाल के जवाब में आपने गलती कर दी है जनाब। 2 नंबर आपको मिलेंगे। अब बारी अनीस साहब की है, मुल्तान से ताल्लुक। घर में अगर कोई ना हो तो दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहें। सही। जियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मजार मुबारक मक्के में है। गलत। जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हजरत इमाम अहमद रजा खान के खलीफा नहीं हैं। गलत। सिरातुल जिनान हदीस के मौजू पर लिखी गई किताब का नाम है। गलत। किताब हयात आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की तसनीफ है। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। वाले आगे बढ़ते हुए मरी वालों की बारी है। सैफुल्लाह की बारी है। बगदाद मुअल्ला यमन का मशहूर शहर है। गलत। कशफुल महजूब इमाम गजाली की मशहूर किताब नहीं है। सही। अमीर अहले सुन्नत के वालिद का नाम अब्दुल रहमान है। सही। दांत से नाखून नहीं काटना चाहिए कि मकरू है। सही। वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब पारी है मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले मुस्तंसर इस्माइल की। नमाज के 7 फराइज है। सही। सूरह बनी इसराइल कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। गलत। हम खाक हैं और खाक ही बाबा है हमारा। कलाम मौलाना हसन रजा खान साहब का है। गलत। हुरूफ मद्दा को 5 अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। गलत। सारे बदन पर पानी बहाना गुस्ल के फराइज में शामिल नहीं है। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। इस सेगमेंट में मुल्तान वालों ने कोई गलती नहीं की। जुल्करनैन मरी से ताल्लुक है। सवाल है इस्मत सुरमा लगाना वाजिब है। गलत। हुरूफ यरमलून 5 है। गलत। कुरान पाक में लफ्ज मोहम्मद 4 बार आया है। गलत। आबे जमजम खड़े होकर पीना वाजिब है। गलत। हुरूफ कलकला का मजमुआ यरमलून है। गलत। एक गलती हुई है। लफ्ज मोहम्मद कुरान में 4 बार आया है। नाजरीन मुकाबला अब इख्तिताम पजीर हुआ। बरी वालों ने बड़ी कोशिश की लेकिन जनाब आज का मुकाबला मदीनतुल औलिया मुल्तान वाले जीत गए हैं। से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं और बरी वाले अच्छी तैयारी करके दोबारा मौका मिलेगा वापस आएं और फिर इंशाल्लाह कम बैक करें। हमने देखा है टीमें पीछे जाती है फिर अच्छी तैयारी करके वापस आकर एक चांस जो मिलता है उसको पूरा कर लेते हैं। आइए नाज़रीन आपको टोटल स्कोर बोर्ड भी दिखाएंगे कि किस तरह मुकाबला चलते चलते कैसे हुआ। आइए पहले वक्त हुआ है कि आप सबकी भी कुरानदाजी करेंगे। सवाल का जवाब जी सवाल किया गया था शुरू में उसका जवाब। सवाल ये था कि सबसे पहले अजान की तजवीज़ किस सहाबी रसूल रदी अल्लाह अन्हु ने दी। दुरुस्त जवाब है सबसे पहले अजान की तजवीज़ हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दी। रहमतुल्लाह बिन दाऊद ख़ान उमरकोट सिंध बिनते रफ़ीक अत्तारिया गुजरावाला उम्मे अमजद रज़ा महमूद कराची मोहम्मद इब्राहिम अत्तारी वाहकंड राव मजहर फ़ारूक अत्तारी पाकपतन उम्मे बिलाल अत्तारिया सखर बिनते निसार इस्लामाबाद हाफिज़ रहमत अली अत्तारी मियाँ वाली मोहम्मद रज़ा कराची मोहम्मद ज़ीशान अत्तारी मामू कांजन बिनते फ़रीद अत्तारिया फ़तेह जंग बिनते असलम कामों की। आज जो तोहफ़ा है वो जा रहा है मियाँ वाली हाफिज़ रहमत अली अत्तारी मियाँ वाली। एक सवाल आपसे हम करते हैं नाजरीन जिसका जवाब आप अगले प्रोग्राम से पहले देंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था ये आपने जवाब देना है। कल मुकाबला किसके साथ है आइए आपको बताते हैं।
के खार आंखों में, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब जहानत, हाजिर जवाबी और हौसला हो एक साथ तो फिर कामयाबी ही मिलती है। एक सवाल, एक मौका और एक जीत, ये सब देखने को मिलेगा मदनी चैनल के मकबूल आम क्विज प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 17 में इंशाअल्लाह 4 नवंबर 2025 बरोज मंगल रात 9 बजे, जिसमें होंगी मीरपुर कश्मीर और सियाल शरीफ की टीम आमने सामने बराह रास्त मदनी चैनल पर। मीरपुर कश्मीर और सियाल शरीफ वालों का कल मुकाबला है। देखना है कैसी तैयारी करके कश्मीर से आने वाले आते हैं। जनाब, आज का बेस्ट परफॉर्मेंस का जो अवार्ड दे रहे हैं हम मुस्तनसर इस्माइल को दे रहे हैं। माशाल्लाह, वैसे तो सारी मुल्तान की टीम कमाल है, माशाल्लाह इनकी तैयारी भी बड़ी अच्छी। और नाजरीन, अब आपको दिखाते हैं पूरा स्कोर बोर्ड कैसे मुकाबला चलता रहा और कहां पहुंचा। 41 मरी, 48 मुल्तान। आखिरी सेगमेंट में 4 नंबर का फर्क मजीद बढ़ गया। आइए नाजरीन, अब क्विज एप्लीकेशन की कुरानदाजी की तरफ चलेंगे। सवाल था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कश्ती में कौन सा परिंदा दाखिल फरमाया? जवाब था तोता। ये दुरुस्त जवाब था। 5 आईडीज देखते हैं जिनका नाम निकला है। ये 5 आईडीज नोट कर लें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि आप तक ये तोहफा पहुंचाया जाए। नाजरीन, अब कुरानदाजी होगी आज इंशाअल्लाह। मारिफतुल कुरान आप हाजरीन के मौजूद इस्लामी भाइयों में दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अब देखिए किसका नाम निकलता है क्रोकट में और उसको पेश करते हैं इंशाअल्लाह। 5829 आ जाए भाई। माशाअल्लाह, मारिफतुल कुरान का पूरा सेट आपको दिया जा रहा है और फिर अच्छी नीयतें भी हमें दीजिएगा कि जल्द इसको पढ़ेंगे। बच्चों की कुरानदाजी 5931 माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं राशिद भाई? अच्छा, इमामत कोर्स कर रहे हैं। चलें भाई।